Once again, a very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the last part of this chapter, and we are going to start the role of human capital formation in economic development. Here we will study two aspects. One is that what role the human capital formation plays in the economic development of a country. So we will study some general points on this to support this fact. And second, we will study that how it is proved with the help of numerical data that whenever there is increase in the human capital formation, automatically there will be increase in the economic development of the country. So first of all, we will study the general discussion that what role the human capital formation plays for the economic development of the country. So let's start it. Economic development we know it means growth of physical production, we call it growth of the GDP, plus qualitative changes. When I say qualitative changes, you know economic growth is a narrow concept, economic development is a broader concept. Economic development means there is increase in the GDP, at the same time there is reduction in the poverty, unemployment, etc. So then we say there is economic development. So same we are discussing here. There is growth of the physical production, that is GDP, plus qualitative changes like there is increase in the productivity of the factors and other such changes. So following points highlight the role of the human capital formation in the process of the growth and development. So this is the first part, the general discussion about that how the human capital formation promotes the economic growth of the country. कैसे human capital formation से country के अंदर economic development होती है, economic growth होती है. Economic growth और economic development में difference यही है. Economic growth का मतलब है जब country की GDP लगातार बढ़ती जाए और उसके साथ जब कुछ qualitative changes भी आ जाए, per capita income हमारी जो है वो बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती जा रही है, चाहे वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है चाहे वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो समझो कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. अब यहाँ पर ये जो कुछ फैक्ट्स हम पढ़ेंगे जो ये बताते हैं कि यस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिसमें पहली बात हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव चेंज इन द एटीट्यूड. जब कभी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, हम ह्यूमन कैपिटल प्रमोट करते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, तो क्या होता है लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों का जो किसी भी चीज के प्रति नजरिया है उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, उनकी सोच ऊंची हो जाती है. Investment in the human capital makes the people more skilled and modern in their thoughts and actions. It makes their attitude positive. यहाँ मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी कहूँगा, अगर एजुकेशन के बाद भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, इसका मतलब सही एजुकेशन आपने अपने आप में अभी तक उसको डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं किया. अदरवाइज लाइफ में अगर आप एजुकेशन को सही मायने में यूज़ कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड हर चीज़ के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए. सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी तो लोगों में एफिशिएंसी आएगी, स्किल प्रमोट हो जाएगा, नॉलेज प्रमोट हो जाएगी, तो क्या होने वाला है उनकी हर चीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी. इट विल एनहांस, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल. थर्ड देखिए
एफिशिएंट यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। कोई भी फिजिकल कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, हम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसको बढ़िया यूज कौन करेगा? जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, वही उसका बढ़िया यूज करेगा। नॉलेज और स्किल कहां से मिलेगा? जब कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो ये बात प्रूव हो गई कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फिजिकल कैपिटल को भी हमें बढ़िया तरह से प्रयोग करना सिखाती है। अगला है इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। क्या मतलब हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से खाली प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि इट स्टिमुलेट्स का मतलब होता है इट प्रमोट्स, ये बढ़ाती है इनोवेशन, नए नए खोज, नए नए आविष्कार, एंड क्रिएट्स द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन हम कह रहे हैं यार क्या हो गया, कौन इसे यूज करेगा? मजबूरी आई, कोरोना आया, अब आपको पढ़ाने का तरीका यही बना कि चलो यार वीडियो लेक्चर कर दें या ऑडियो मटेरियल भेजें। अब ये चलिए मजबूरी रही कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, आपको स्कूल बुलाना अभी संभव नहीं है, तो अब इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया तो आप तक लेक्चर पहुंच गया और हमने भी लर्निंग कर ली। गूगल मीट के थ्रू आपसे बात की, व्हाट्सएप के थ्रू आपसे बात हो गई, अब ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आप तक पहुंच रहा हूं। तो दिस इज टू अडेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। ये कौन करता है? इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कहां से आती है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से एसोसिएटेड है। हम कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा, हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम अपनी फिजिकल कैपिटल को बेटर यूज करेंगे और इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी। और अब हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी क्यों? ड्यू टू क्वालिटी एजुकेशन। जब लोगों को बढ़िया शिक्षा मिलेगी, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज मिलेंगी, स्किल फॉर्मेशन होगी, तो अपने आप उनके जीवन का स्तर सुधरेगा। क्यों सुधरेगा? क्योंकि जब उनके पास ये सब चीजें होंगी तो वो बढ़िया अर्निंग कर पाएंगे और अच्छी अर्निंग से उनके जीवन का स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंप्रूव हो जाएगी। और खाली उन्हीं का नहीं, सारे देशवासियों के जीवन के स्तर में सुधार हो जाएगा, क्योंकि सारे स्किल्ड और एजुकेटेड हो जाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि इसका सबसे बढ़िया इफेक्ट क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी इंप्रूव हो जाएगी। अब वह बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या इसके कोई स्टैटिस्टिकल डेटा या कोई न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऐसे हैं हमारे सामने कि जो इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन को बताएं? पॉजिटिव का मतलब, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगी, अगर कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। क्या ऐसे कुछ फैक्चुअल हमारे पास, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स है? तो वो कहते हैं कि नहीं। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो इनमें काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिखता। बट अगर हम इंडिया को लेके बात करें तो इंडिया में हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, जैसे IMR, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिनमें कि ये दिखता है कि क्योंकि हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई तो इन चीज़ों में सुधार आया। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, experiences of the developing countries about the role of the human capital formation on economic development are rather confusing। देखो, confusing का मतलब यहां पर उनको confusion है, कुछ clarity नहीं है, they are confusing। The experiences reveal, क्या experiences है उनके?
that the growth of the human capital formation has not led to simultaneously increase in the per capita income. ऐसा नहीं हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ गई और लोगों का जीवन का स्तर बढ़िया हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, उनकी प्रति व्यक्ति आय यानी उनकी एवरेज इनकम बढ़ी, लेकिन इसलिए वो कहता है हेंस इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो उसने एक जनरल बात कर दी डेवलपिंग कंट्रीज की। अब इंडिया का क्या सीन है, देखो वो क्या कहते हैं। हाउएवर द इंडिया एक्सपीरियंसेस गिव समवट क्लियर रिजल्ट्स, हमारे यहां के तजुर्बे हमें कुछ क्लियर रिजल्ट्स दे रहे हैं। सिलेक्टेड इंडिकेटर्स इन द हेल्थ एंड एजुकेशन, हम ये कुछ इंडिकेटर्स कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन के, क्लियरली एस्टैब्लिशेस सम कोरिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए कैसे, ये हमारे सामने टेबल है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, और यहां आप देख रहे हो 3 कॉलम है हमारे पास, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में नेम है उस इंडिकेटर का, क्रूड डेथ रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यहां पर ये मेल का है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फीमेल, लिटरेसी रेट, एंड लास्ट इज अ रियल पर कैपिटा इनकम एट 2011-12 प्राइसेस। अब ध्यान से देखना, क्रूड डेथ रेट जो कि 1951 में 25 था, अब ये कम हो गया 6.7 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब सचमुच हमने अगर हेल्थ में इन्वेस्ट किया है तो हमारा डेथ रेट बहुत कम हो गया, तो एक पॉजिटिव साइन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बच्चे जो 1 साल की उम्र से पहले ही चले जाते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा था IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी हमारा बहुत कम हो गया, 146 था वो और अब वो 37 हो गया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड साइन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना एक न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, जो कि शुरू में 37 था, नियर अबाउट वो डबल ही पहुंच गया, 67 हो गया। ये प्रूव कर रहा है कि हाँ, हमने क्योंकि इन्वेस्ट किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर, हमें उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और मेल में ये 36 से 70 हो गया, ये हम पढ़ रहे हैं मेल, और ये फीमेल, मेल में 37 से 67, फीमेल में 36 से 70। लिटरेसी रेट जो कि 16% था, 16.7, अब ये 76 हो गया इन परसेंटेज। और रियल पर कैपिटा इनकम वाज 11,770 एट 2011-12 प्राइसेस, विच रोज टू 72,900। अब देखो, जो मैंने ये आपको सारा न्यूमेरिकली ये टेबल एक्सप्लेन किया, यही हमने यहां लिखा है। सबसे पहली चीज फर्स्ट क्या है, देखो अब ध्यान से देखो, ट्रेमेंडस fall in the death rate, IMR, and almost 100% in the increase in the life expectancy must be in the result of human capital formation in the health sector। ये जो हमें तीनों दिख रहे हैं, ये वाले, ये सारे, ये इनमें जो कमी दिख रही है ये तभी हुआ है, यानी अगर हमारा डेथ रेट कम हो गया, IMR कम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई मेल और फीमेल, इसका मतलब ये सब साइन क्या है कि हमने जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। उसके साथ ही along with the growth of the human capital there is simultaneous manifold increase in the per capita income। दिख ही रहा है हमें, पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा हमें फायदा हुआ। थर्ड, मोर देन 3 times इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। देखो ये करीब 4 गुना ही हमारा हो गया, 4 से 5 गुना हो गया, लिटरेसी रेट हमारा बहुत बढ़ गया, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन सेक्टर। कुछ
एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैव ऑल्सो एंडोर्स्ड, मतलब उन्होंने इस बात को प्रूव किया, द इंडियन एक्सपीरियंस। जो हम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, उस चीज को कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी प्रूव कर रही हैं। एंड एक्सप्रेस द होप दैट द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी स्ट्रॉन्गर। जितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। देखो, पहली रिपोर्ट जो है ड्यूचे बैंक जर्मनी, जो कि रिपोर्ट में उसका टाइटल है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स, पब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 2005। ये भी रिपोर्ट हमें इस बात को प्रूव कर रही है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की, रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उसके एंटाइटल्ड इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी, ये उसका टाइटल है, लिवरेजिंग स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये जो सेकंड रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताई, जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये भी इस बात को प्रूव कर रही है कि हाँ, हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है। तो लो बेटे, हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया। आपका चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड पार्ट था, सीबीएसई के सिलेबस में इस 2020-21 में डिलीट हो चुका है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट हम सारा डिटेल में कर चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, लाइक और कमेंट ज़रूर करोगे, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और बेस्ट आगे लेक्चर बनाऊं और आप तक पहुंचा दूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।